Welcome students. This video lecture is belongs to basically class 11th, chapter 9, hydrogen. In our previous lecture, we discussed about the ice and water, and today we discuss about the chemical properties of water. So basically, we are dealing with the compounds of hydrogen. हाइड्रोजन के कंपाउंड्स को डील कर रहे थे आप कौन कौन से हाइड्रोजन के कंपाउंड्स हैं जैसे कि वाटर हो गया, आइस हो गया, हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो गया. Today we talk about the lot of about the water and chemical properties of the water. This is part 6 of this chapter. So chemical properties of water. So what we think. So basically there are amphoteric nature of water. We discuss the amphoteric nature. Second, reaction with the hydrides and the carbide. Then we react water with the non-metal, with the metal, and finally hydrolysis. So basically we discuss about the 5 basic chemical properties of the water along with the one extra reaction that is called autoprotolysis. वो भी डिस्कस करेंगे. So first we talk about the amphoteric nature. We most of the time hear this term amphoteric. What does mean by amphoteric term? So the basic meaning of amphoteric means a compound which may react with the acid as well as base. जो एसिड के साथ भी रिएक्ट करे और बेस के साथ भी रिएक्शन करे दैट इज कॉल्ड एम्फोटेरिक कंपाउंड्स. वाटर एक एम्फोटेरिक कंपाउंड है. कैसे आप उसे एक्सप्लेन करेंगे? सबसे पहले आप वाटर की रिएक्शन करवाइए किसी भी बेस के साथ. ओके, सो first we react this water with the ammonia which is a base to obtain ammonium in an aqueous state and hydroxide also in an aqueous state. So basically this reaction implies that water can react with the base. Ammonia is a base. Now we talk about the acid. What happens if water is act as react with the acid? Then acid is the H2S, dihydrogen sulfide gas. So first we take the aqueous solution of dihydrogen sulfide gas and react it with water. Then we got hydronium ion and hydrogen sulfide. So these reaction represent the amphoteric nature of the water. Now we talk about the important reaction that is called autoprotolysis. Auto means होता है self. अगर आप इस टर्म को ब्रेक करें तो ऑटो अलग और प्रोटोलाइसिस अलग. ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, यानी कि दोज रिएक्शन इन विच रिएक्टर अंडरगो सेल्फ डिकम्पोजिशन. कैसे हो रहा है वो समझा देता हूँ. ऑटो प्रोटोलाइसिस में क्या है कि बोथ द रिएक्टेंट्स आर वाटर मॉलिक्यूल्स और दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे. एक अपना हाइड्रोजन लूज करेगा. हाइड्रोजन लूज करना, सेपरेट होना कहलाता है प्रोटोलाइसिस. प्रोटॉन का अलग होना प्रोटोलाइसिस कहलाता है. तो यहाँ से सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ वाटर से हाइड्रोजन रिमूव होगा प्रोटॉन की फॉर्म में और ये एक्सेप्ट करेगा ये ऑक्सीजन. ऑक्सीजन क्यों एक्सेप्ट करेगा? क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर्स होते हैं. अगर आपने वाटर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर देखा हो दैट ऑक्सीजन ऑफ अ वाटर मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. 2 लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं तो एक लोन पेयर यूटिलाइज होगा और ये जो प्रोटॉन यहाँ से आ रहा है उससे वो कैप्चर करेगा. तो जैसे ही अपना लोन पेयर लूज करेगा इट एक्वायर पॉजिटिव चार्ज एंड द नंबर ऑफ हाइड्रोजन बिकम्स 3 एट द प्लेस ऑफ 2. और यहाँ एक हाइड्रोजन कम हो गया है और पॉजिटिव चार्ज यहाँ से रिमूव हुआ है तो ऑब्वियसली जो रिमेनिंग स्पीशीज है हाइड्रोक्साइड उसमें एक माइनस चार्ज बचेगा. So this is all about autoprotolysis. Now we talk about the reaction with the carbide and hydrides. देखिए कौन कौन सी स्पीशीज बनी थी आपके हाइड्रोनियम और हाइड्रोलाइसिस. इज नॉट अ हाइड्रोलाइसिस, इज अ हाइड्रोक्साइड. क्लियर? इट इज अ हाइड्रोक्साइड. So I made some correction here and we'll talk about the yes. So autoprotolysis is over. Now reaction with the carbide and hydrides. कार्बाइड के साथ कैसे रिएक्शन होगी और हाइड्राइड्स के साथ कैसे रिएक्शन. whenever metallic hydrides react with the water they will produce a gas which is
colorless, odorless gas and produce pop sound on a burning, that is hydrogen gas. तो हाइड्राइड जब भी वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे दे विल प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, और जब भी कार्बाइड आपके रिएक्शन कर रहे होंगे वाटर के साथ दे विल प्रोड्यूस एसिटिलीन गैस, दैट इज रिप्रेजेंट बाय C2H2। इसे बोलते हैं आप IUPAC नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग इथीन गैस। इथीन नॉट इथीन, इथाइन गैस, सी ट्रिपल बॉन्ड है यहाँ पर, तो इथाइन होगा। C2H2 गैस एसिटिलीन भी बोली जाती है बहुत सी बार, एंड दैट गैस इज मोस्टली यूज इन एसिटिलीन गैस वेल्डिंग, वहां पर काम में लिया जाता है। साथ में आपको बेसिस मिलेंगे मेटल्स के, मेटल हाइड्रोक्साइड आपको मिलेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्राइड जब आप काम में ले रहे हैं तो ये हाइड्रोजन कहीं ना कहीं यहाँ से रिमूव हो रहा है, इस तरीके से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में, और यहाँ अगर कार्बाइड की रिएक्शन करवाते हैं दैट इज C2H2, यानी कि यहाँ आपको एसिटिलीन गैस मिलेगी जो एसिटिलीन गैस वेल्डिंग में आपके काम आएगी। नाउ वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज रिएक्शन विद नॉन मेटल। नॉन मेटल खूब सारे हैं आपके पास, बट मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल्स आपको मिलेंगे ग्रुप नंबर 17 के अंदर, जिसे आप बोलते हैं हैलोजन फैमिली। वहाँ जो नॉन मेटल्स हैं मोस्ट रिएक्टिव, दीज आर फ्लोरीन एंड क्लोरीन, तो उन्हीं के साथ रिएक्शन करवाते हैं हाइड्रोजन की। फर्स्ट वी रिएक्ट हाइड्रोजन विद फ्लोरीन गैस, तो रिएक्शन करवाई जैसे आपने, तो HF मिलेगा आपको यहाँ से हाइड्रोजन फ्लोराइड, और साथ में मिलेगा ऑक्सीजन गैस। What about the important thing about the HF? Hydrogen fluoride is responsible for etching of glasses। देखिए रिएक्शन पढ़ना तो सिलेबस का पार्ट है, लेकिन HF के बारे में जानना ये एक्स्ट्रा नॉलेज है। तो HF का मतलब क्या है? HF क्या, हाइड्रोजन फ्लोराइड एक ऐसा एसिड है जिसे आप ग्लास में स्टोर नहीं कर सकते, ग्लास बॉटल्स में स्टोर नहीं कर सकते, बिकॉज दैट केमिकल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ईचिंग ऑफ ग्लासेस। ये ग्लास को भी कोरोड कर देता है, उसे भी डिसोल्व कर लेता है। तो HF जो है प्लास्टिक की बोतल्स में आप इसे स्टोर करेंगे। अच्छा, ऑक्सीजन गैस यहाँ क्या हो रही है, रिलीज हो रही है इस रिएक्शन के दौरान। तो हाइड्रोजन फ्लोराइड बना और ऑक्सीजन बना, साथ में एक और रिएक्शन करवा लें आप, क्लोरीन की करवा लें वाटर के साथ, तो HCl बनेगा और O2 बनेगा। हेलोजन चेंज है, एसिड चेंज है, हाइड्रोजन क्लोराइड जो है यहाँ पर बनेगा। HCl के बारे में क्या बोले, HCl जो है इसमें HCl आपको दोनों तरह के फ्यूमिंग लिक्विड है, बेसिकली फ्यूमिंग एसिड है। HCl की बोतल का ढक्कन खोलते हैं आप, HCl एज अ वेपर की तरह बाहर निकलता है, जो पंजेंट स्मेलिंग होता है, और साथ में इससे आपको सफोकेशन भी हो सकता है। तो HCl जो गैसियस फॉर्म में भी मिलता है और लिक्विड फॉर्म में, तो यही है फ्यूमिंग एसिड है बेसिकली ये, तो आप इसका थोड़ा सा ध्यान रखिए। आगे मूव करते हैं, रिएक्शन विद द मेटल्स। तो हाईली रिएक्टिव मेटल्स के साथ ही रिएक्शन करवाई है मैंने, वन विद सोडियम एंड अनदर रिएक्ट विद कैल्शियम, दोनों चीजें लेके चल रहे हैं। तो व्हाट हैपन इफ सोडियम इज रिएक्ट विद वाटर, आपने सोडियम को पीस लिया और उसे वाटर में डिप कर दिया, सिंक में पानी है उसमें आपने उसे फेंक दिया, तो क्या होगा, वहां वो जलना स्टार्ट हो जाएगा, इट स्टार्ट बर्निंग। तो हाइड्रोजन जो है, कभी भी वाटर आपका जो सोडियम नहीं जलता है, जलता आपकी हाइड्रोजन गैस है। एक्चुअली क्या होगा, वहां रिएक्शन क्या हो रही होगी वो देखिए यहाँ पर, सोडियम रिएक्ट विद वाटर टू प्रोड्यूस बेस एंड हाइड्रोजन गैस। अब हाइड्रोजन गैस, ये जो रिएक्शन है दैट रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब होता है ऐसी रिएक्शन जिससे हीट प्रोड्यूस होती हो। जैसे आप सोडियम का पीस वाटर के साथ मिक्स करते हैं या इसमें पुट करते हैं या फेंकते हैं, तो क्या होगा, एकदम से NaOH बनेगा और साथ में हीट भी बनेगी। हीट रिलीज हुई है क्योंकि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, और वो हीट सफिशिएंट है हाइड्रोजन को जलाने के लिए, कंबस्ट करने के लिए। सो द हीट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग दैट रिएक्शन इज सफिशिएंट टू अचीव द इग्निशन, help to achieve the ignition point of hydrogen gas। तो हाइड्रोजन बोर्ड अपना, हाइड्रोजन गैस जो है अपना इग्निशन पॉइंट अचीव कर लेगी एंड स्टार्ट बर्निंग, ये जलना स्टार्ट हो जाता है। तो अपन बोलते हैं कि सोडियम जब पानी में फेंकते हैं तो आग लग जाती है। तो आग जो है बेसिकली, फायर जो है बेसिकली, जलता कौन है, हाइड्रोजन गैस जलती है। आगे मूव करते हैं, कैल्शियम में रिएक्ट विद वाटर एंड प्रोड्यूस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अलोंग विद द हाइड्रोजन गैस अगेन। बट यहाँ ये वाली रिएक्शन जो है काफी विगरस होती है और ये रिएक्शन थोड़ी स्लो होती है। यहाँ आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि हाँ ये इतनी ज्यादा एक्सोथर्मिक नहीं है कि यहाँ पर आग लग जाए।
सोडियम के केस में ये बहुत ज़्यादा विगरसली होती है रिएक्शन और यहाँ बर्निंग होती है हाइड्रोजन गैस। आगे मूव करते हैं। Now we talk about the last and final reaction, that is hydrolysis, that belongs to the reaction of water. हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, और लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन, यानी कि समथिंग इज ब्रेक इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो सोडियम कार्बोनेट मैंने यहाँ लिया, और कार्बोनेट जब भी रिएक्शन करता है वाटर के साथ, तो देखिए यहाँ एक एसिड बना है जिसका नाम है कार्बोनिक एसिड H2CO3, साथ में 2 सोडियम आयन बने हैं और 2 OH बने, ये मिलकर आपके NaOH बना लेंगे बाद में, है ना। तो यहाँ पर आपको जो मिला है वो कार्बोनिक एसिड मिला है, साथ में एक बेस मिला है। तो इस तरीके से आप इसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप इस रिएक्शन को कैसे लिख सकते हैं, यहाँ से आप इसको ऐसे लाइन खींचे और 2 मॉलिक्यूल है वाटर के, तो आप इधर लिखें H, इधर लिखें OH, फिर लिखेंगे H, फिर इधर लिखेंगे OH। तो 2 Na की तरफ 2 H हो गए, तो ये आ गए वहां पर, और इधर H2 आया था तो H2CO3 लिख दिया। इस तरह की आप रिएक्शन को ड्रॉ कर सकते हैं समझने के लिए। टाइप्स ऑफ वाटर की बात करते हैं, पानी के भी टाइप होते हैं। टाइप सेम बिल्कुल, एक वो पानी है जो साबुन के साथ जो है जाग नहीं देता है, और एक साबुन के साथ जो क्या देगा, लेथर प्रोड्यूस करेगा। So that on the basis of that property, water is classified as a soft water and the hard water. Hard water जो है वो क्लीनिंग के लिए आप यूज नहीं करते जब आप साबुन काम में ले रहे होते हैं। डिटर्जेंट आर इफेक्टिव इन हार्ड वाटर एज वेल एज इन सॉफ्ट वाटर। डिटर्जेंट दोनों तरह के वाटर्स में क्या है, इफेक्टिव है। लेकिन अगर आप सोप यूज कर रहे हैं फॉर द क्लीनिंग पर्पजेज ऑफ द क्लॉथ, एट दैट टाइम आप जो है हार्ड वाटर और सोप का कोई मेल नहीं है, दोनों आपस में आप रिएक्ट यूज नहीं कर सकते। तो ऐसी क्या बेसिक थिंग्स हैं, क्या प्रॉपर्टीज चेंज हो गई जिसकी वजह से आपका हार्ड वाटर जो है साबुन के साथ जाग प्रोड्यूस नहीं करता। देखिए कैसे। सॉफ्ट वाटर की बात करूं मैं, तो इफ द वाटर इज फ्री फ्रॉम सोल्यूबल सॉल्ट्स इम्प्योरिटीज ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। एक्चुअली क्या होता है, जितने भी आपके कैल्शियम मैग्नीशियम है उनके जितने भी सॉल्ट्स हैं, इट में भी क्लोराइड, सल्फेट और बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट, जितने भी इनके सोल्यूबल सॉल्ट्स हैं जो सभी पानी में डिसोल्व होते हैं, अगर वो पानी के साथ प्रेजेंट है तो उसे आप बोलेंगे हार्ड वाटर, और अगर नहीं प्रेजेंट है तो उसे आप बोलेंगे सॉफ्ट वाटर। मैं सॉफ्ट वाटर की बात कर रहा हूं। इफ द वाटर फ्री फ्रॉम सोल्यूबल सॉल्ट इम्प्योरिटीज ऑफ द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, तो उसे आप सॉफ्ट वाटर ट्रीट करेंगे, ठीक है। हार्ड वाटर के केस में क्या बोलेंगे, इफ द वाटर कंटेन्स सोल्यूबल इम्प्योरिटीज ऑफ सोल्यूबल सॉल्ट्स ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। अब सोल्ट्स की बात कर रहा है तो कहीं ना कहीं मैग्नीशियम क्लोराइड की, मैग्नीशियम सल्फेट की, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की और कार्बोनेट की बात हो रही है यहाँ पर। तो ये सभी जो है हार्डनेस को कॉज करते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में थोड़ा सा और पढ़ा देता हूँ। रीजन फॉर द हार्डनेस, क्या कारण रहा है कि सोप जो है दैट नेवर वर्क इन द हार्ड वाटर। Basically we go for the nature of the soap that we use. Soap basically contain sodium salts, okay, sodium stearate। तो ये salt है, basically sodium stearate है, and react with the hard water to precipitate out calcium magnesium stearate। देखिए किस तरीके से रिएक्शन हो रही है। ये आपका सोप है C17H35COONA, ये सोल्ट है क्योंकि इसमें देखिए कैटायन भी है और एनायन भी है, Na+ भी है और CO नेगेटिव भी है। तो ये आपका क्या हो गया, सोप हो गया। व्हेन इट रिएक्ट विद द हार्ड वाटर के अंदर ये M2+ होगा। M2+ आपको कुछ भी हो सकता है, इट में भी कैल्शियम 2+ और मैग्नीशियम 2+, कोई भी डाई पॉजिटिव कैटायन है। जब हार्ड वाटर, ये कहाँ से आया है, हार्ड वाटर से आपको ये मिला है। ये आपका सोप है, ये आपका हार्ड वाटर से आया है। जब दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, इसके 2 मॉलिक्यूल्स मिलकर ये स्टेरेट वाला जो पार्ट है वो यहाँ पर अटैच हो जाता है, जो क्या बन जाता है, कैल्शियम मैग्नीशियम स्टेरेट यहाँ पर फॉर्म होके, जिसका वजन ज्यादा है, जस्ट डबल है। देखिए इसका जस्ट ट्वाइस है, तो ये इसके साथ जो है इसका मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने से ये प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है, ये सेटल हो जाता है बॉटम पर, एक स्टिकी पीपीटी जो है वहां बन जाती है और साथ में रिलीज हो जाता है Na+। देखिए अगर किसी वाटर के अंदर Na+ है या K+ है तो इनकी वजह से जो है आपका वाटर हार्ड नहीं होता, हार्ड होता है कैल्शियम Ca2+ से और Mg2+ से, ये समझिए। तो पीपीटी आपको जो मिलती है वो काफी स्टिकी होती है, और ये पीपीटी आपको क्लॉथ को साफ करने के बजाय उससे काफी और ज्यादा गंदा कर देगी। तो दैट्स व्हाई वी नेवर यूज सोप
व्हेन वी क्लीन विद क्लॉथ विद द हार्ड वाटर। तो हार्ड वाटर में आप साबुन कभी काम में नहीं लेते, क्योंकि झाग तो प्रोड्यूस होगा नहीं, बल्कि जो क्लॉथ आप धोने जा रहे हैं वो और ज्यादा गंदा हो जाएगा, उस पर स्टिकी पीपीटीओ जम जाएगी उस साबुन की वजह से। तो हार्ड वाटर इज नॉट सुटेबल फॉर द क्लीनिंग ऑफ द क्लॉथ। ये चीज आप हमेशा ध्यान रखिए। क्यों नहीं है उसके पीछे रीजन दिया था मैंने। आगे मूव करते हैं। तो इस तरीके से आज का जो है लेक्चर यही कंप्लीट कर लेते हैं। कल मैं बात करूंगा, देखिए अगर हार्ड वाटर आपके लिए इतना ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है तो व्हाई डोंट वी मेक इट एज अ सॉफ्ट। आप इसे सॉफ्ट क्यों नहीं बना सकते? तो सॉफ्ट बनाएंगे अपन कल। वी डिस्कस द टेक्निक्स विच आर यूज्ड टू कन्वर्ट हार्ड वाटर इनटू सॉफ्ट, यानी कि हाउ वी रिमूव द हार्डनेस ऑफ द वाटर। हार्ड वाटर भी दो तरीके का होता है, परमानेंट हार्डनेस और टेम्पररी हार्डनेस। तो we talk about lot of about the hard water and how a study that we use to remove the hardness of the water, but in a next lecture. So this is all about today lecture and I hope you enjoy this video lecture। and अगर आपको पसंद आया तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें, है ना। काफी कुछ दिनों से कोई एक सब्सक्राइबर भी नहीं पड़ा, इसका मतलब आप देख नहीं रहे, और जो बच्चे नहीं देख रहे कोई बात नहीं, एग्जाम तो होना है आपका, पढ़ना तो पड़ेगा। सो आप इसको वॉच करिए। सब्सक्राइब नहीं करना है कोई बात नहीं, सब्सक्राइब नहीं करना है कोई बात नहीं, लेकिन पढ़ाई कंटिन्यू करें, ठीक है। सो दिस इज ऑल आर अबाउट टुडे लेक्चर एंड हैव नाइस डे।